Good morning, students of class 7th. Today I am going to teach you English literature, chapter 2, Bringing Up Kari. Okay, this lesson has been written by Dhan Gopal Mukherjee. Okay, Kari, a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. Kari doesn't eat much, just about 16 kilograms of delicious twig a day. Playful and sensitive Kari saves a boy from drowning. यानी कारी एक 5 महीने का हाथी का बच्चा था और अपने 9 वर्षीय मित्र एवं रखवाले के साथ में रहता है और बड़ा होता है। ठीक है, कारी ज़्यादा नहीं खाता है, बस लगभग 16 किलो स्वादिष्ट टहनियाँ एक दिन में खाता है। कारी चंचल और संवेदनशील। कारी एक लड़के को डूबने से बचाता है। ओके, कारी द एलिफेंट was 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. He seemed to remain that high for nearby 2 years. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stump so that it could not fall in when Kari bumped against the poles as he moved about. ओके, यानी कारी जो हाथी है 5 महीने का था जब वह मुझे देखभाल के लिए सौंपा गया। मैं 9 साल का था। यदि मैं अपने पंजों पर खड़ा हो जाता तो उसकी पीठ पर पहुंच सकता था। वह 2 साल तक उतना ही ऊंचा लगता था। ठीक है, हम दोनों एक साथ पले बढ़े, तभी संभव हो पाया। मैं कभी यह पता नहीं लगा पाया कि वह हाथी कितना लंबा था। ओके, यानी वो कितना बड़ा था। वह एक पंडाल में फूस से ढकी छत के नीचे रहता था जो एक मोटे पेड़ के ठूंठ पर टिकी हुई थी, ताकि जब कारी इधर उधर घूमे तो वो खम्भों से टकरा जाए और यह गिरे नहीं। ठीक है, One of the first things Kari did was to save the life of a boy. Kari did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. Every day I used to take him to river in the morning for his bath. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. After that, he would lie in the water for a long time. On coming out, his skin would be shining like ebony, and he would squeal with pleasure as I rubbed water down his back. Then I would take him by the ear, because that is the easiest way I lead an elephant, and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs of his dinner. One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. It takes half an hour to sharpen the hatchet, because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. Okay, यानी सबसे पहले इसमें ये बताया गया है कि जो हाथी जो का बच्चा था, कारी था, उसने एक लड़के के जीवन को बचाया। ठीक है, उसने क्या किया? उसने एक लड़के के जीवन को बचाया, डूबने से बचाया उसको। ठीक है, उसके बाद कारी ज़्यादा नहीं खाता था, परंतु उसे दिन में चबाने के लिए और खेलने के लिए बस 40 पाउंड टहनियों की ज़रूरत होती थी। मैं उसे रोज़ाना सुबह स्नान कराने नदी पर ले जाया करता था। ओके, और वहाँ पर मैं क्या करता था, जब मैं 1 घंटे तक उसे नदी की साफ़ रेत से रगड़ता, वह रेतीले किनारे पर लेट जाता था। उसके बाद वह लंबे समय तक नदी के किनारे लेटा रहता था, पड़ा रहता था। बाहर निकलने पर उसकी चमड़ी आबनूस की तरह चमकती थी। ओके, और जब मैं उसकी पीठ पर पानी मलता था तो वह आनंद से चिल्लाता था।
ठीक है, आनंद से चिल्लाता था। और क्या करता था, तब मैं उसके कान पकड़ता, क्योंकि किसी हाथी को काबू में रखने का यह सबसे आसान तरीका है। और फिर मैं उसे जंगल के किनारे पर छोड़ देता और स्वयं उसके रात्रि भोज के लिए, डिनर के लिए स्वादिष्ट टहनियाँ लेने जंगल में घुस जाता। इन टहनियों को काटने के लिए एक बहुत पैनी कुल्हाड़ी की आवश्यकता पड़ती है। कुल्हाड़ी को पैना करने में आधा घंटा लगता, क्योंकि यदि किसी टहनी को अव्यवस्थित ढंग से काट दें तो हाथी उसे स्पर्श तक नहीं करेगा। ओके, इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट twigs and sapling for curry. I had to climb all kinds of trees to get most delicate and tender twigs. As he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a casserole of leaves and branches, I was gathering some one spring day in March, when I suddenly heard Kari calling to me in the distance. As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. I thought somebody was hurting him, so I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. ओके, यानी कारी के लिए टहनियाँ एवं छोटे पौधे ढूंढना बहुत ही आसान कार्य नहीं था। ठीक है, यानी कारी के लिए टहनियाँ एवं छोटे पौधे ढूंढना आसान कार्य नहीं था। मुझे सबसे स्वादिष्ट और कोमल टहनियों को लेने के लिए सभी प्रकार के वृक्षों पर चढ़ना पड़ता था। ओके, क्योंकि वह बरगद के पेड़ की नई शाखाओं को खाने का बहुत शौकीन था, जो कि पत्तियों और शाखाओं के एक प्रधान गिरजाघर की तरह बढ़ती थी। ओके, मार्च के महीने में बसंत के एक दिन जब मैं कुछ इकट्ठा कर रहा था, यानी मार्च के महीने में बसंत के एक दिन जब मैं कुछ इकट्ठा कर रहा था, तो अचानक मुझे कुछ दूरी पर कारी की आवाज़ सुनाई दी। जैसा कि वो बहुत जवान छोटा था, उसकी पुकार हाथी की न लगकर बच्चे की ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि वो भी एक छोटा सा बच्चा था ना। ओके, मैंने सोचा कि उसे कोई कष्ट दे रहा है, कोई इसको सता रहा है, इसलिए मैं बहुत जल्दी से अपने पेड़ के नीचे उतरा और तेज़ी से जंगल के उस किनारे की तरफ दौड़ा जहाँ मैंने उसे छोड़ा था, परंतु वह वहाँ नहीं था। ओके, वो हाथी का बच्चा कारी वहाँ पर नहीं था। ओके, आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। ओके, यानी मैंने सब जगह देखा पर उसे नहीं ढूंढ पाया। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग above its surface. Then it rose higher and it was trunk of... I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface. Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. I thought he was drowning. I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him, since he was much higher than I. But I saw his back rise above the water, and the moment he caught my eye, he began to tempt and struggle up to the shore. That still tempting, he pushed me into the water, and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of river. He had not altogether touched bottom, but was somewhat afloat. I came to the surface of the water to take my breath, and there Kari was standing, his feet planted in the sand bank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine.
I dived down again, pulled the body of the drowning boy to the surface, but not seeing a good swimmer, I could not swim ashore, and the slow current was already dragging me down. ओके यानी मैंने उस हाथी के बच्चे कारी को सब जगह ढूंढा पर उसे कहीं नहीं पाया। ठीक है, सब जगह देखा लेकिन उसे कहीं भी मैं ढूंढ नहीं पाया। मैंने पानी के किनारे जाकर देखा, पास में गया और मैंने देखा कि कोई काली सी चीज़ है जो कि सतह पर संघर्ष कर रही है। ठीक है, और जब वह ऊपर उठी तो वह मुझे ऐसा लगा कि वो हाथी की सूंड थी। मैंने सोचा कि वो डूब रहा था। ओके, वो जो है डूब रहा था। मैं असहाय था क्योंकि मैं पानी में कूदकर उसे 400 पाउंड वजनी हाथी को नहीं बचा सकता था क्योंकि वह मुझसे बहुत ऊंचा था। लेकिन मैंने उसकी पीठ को पानी से ऊपर उठते हुए देखा था। उसकी नज़रें मुझसे मिली और उसने जैसे ही उस कारी ने मुझे देखा तुरंत चिंगाड़ने लगा। ठीक है, तट पर आने के लिए संघर्ष किया और चिंगाड़ते हुए उसने मुझे पानी में धकेल दिया। जैसे ही मैं पानी की धारा में गिरा, मैंने एक लड़के को नदी की तलहटी में पड़ा देखा। उसने पूरी तरह से तलहटी को स्पर्श नहीं किया था किंतु कुछ तैर रहा था। मैं सांस लेने पानी की सतह पर आया। कारी वहाँ खड़ा था। उसके पैर रेतीले तट में धंसे हुए थे और उसकी सूंड मेरी तरफ फैली हुई थी, जैसे कोई हाथ मेरा इंतज़ार कर रहा हो। मैंने दोबारा गोता लगाया, उस डूबते हुए लड़के को पानी की सतह की ओर खींचा। ठीक है, लेकिन एक अच्छा तैराक न होने के कारण मैं तट तक यानी किनारे तक न तैर सका और मंद धारा मुझे अभी भी नीचे की ओर खींचे जा रही थी। ओके, यानी पानी का जो बहाव था उसी में मैं चला जा रहा था। ओके, seeing us drift by the current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water where I saw him stretch, put his trunk again. I raised up my hand to catch it and it slipped. I found myself going under the water again, but this time I found that the water was not very deep. So I sank to the bottom of the river. Okay, and doubled my feet under me and then suddenly kicked the river bed and so shot upward like an arrow in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. This frightened me. I thought some water animal was going to swallow me. I heard Kari squealing and I knew it was his trunk about my neck. Okay, he pulled as bath ashore. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए वो जो धारा में बहता देख कारी, जो प्राय धीरे धीरे भारी भरकम शरीर का था, धीरे धीरे चलने वाला था, अचानक बाज की तरह नीचे की ओर झपटा। ठीक है, नीचे की ओर झपटा और पानी में आधी दूर तक आ गया। और जब मैंने उसे दोबारा सूंड फैलाए देखा तो मैंने अपने हाथ से इसे पकड़ने के लिए उठाया, पर यह फिसल गया, मेरे हाथ से फिसल गया। ठीक है, फिर मैंने दोबारा अपने आप को पानी में नीचे जाते हुए पाया, परंतु इस बार भी मैंने देखा कि पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, इसलिए मैंने नदी के तल तक डूबने दिया। ठीक है, अपने पैर मोड़े और फिर अचानक नदी तल को पैरों से जोरदार धक्का दिया, तीर की भांति ऊपर की ओर आ गया। इस वास्तविकता के बावजूद
कि मैंने अपने हाथों से एक डूबते लड़के को पकड़ रखा था। जैसे ही मेरा शरीर पानी से ऊपर उठा, मैंने अपनी गर्दन के चारों ओर एक रस्सी का फंदा खींचा हुआ महसूस किया। उसने मुझे डरा दिया, यानी वो कारी था। ठीक है, मैंने सोचा कि कोई पानी का जानवर मुझे निगलने वाला था। ठीक है, मैंने कारी को चिंगाड़ते हुए सुना और मैं जान गया कि मेरी गर्दन के चारों ओर उसी की सूंड थी। यानी कारी ने उसके गर्दन को अपनी सूंड से पकड़ लिया बचाने के लिए। उसने हम दोनों को किनारे तक खींच लिया। ओके, कारी becomes fond of ripe bananas. He believes in self-help, much to the discomfort of his friend. With quiet dignity, Kari accepts the chiding he deserves. Okay? यानी कारी पके हुए केले खाने का शौकीन था। ठीक है, और क्या था, वह स्वयं सहायता में विश्वास करता है। ठीक है, कि हमें संघर्ष करना चाहिए और सहायता करनी चाहिए, जो उसके मित्र की परेशानी के लिए काफ़ी है। यानी जब भी जैसे ही उसने देखा कि उसका मित्र मुसीबत में है, तो तुरंत मतलब सहायता करने लग जाता है। तो इसका मतलब है कि वह दूसरों की हेल्प करने में बिलीव करता है। ठीक है, कारी पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ उस सज़ा यानी डांट को स्वीकार कर लेता है जो वह जानता है कि उसे मिलनी चाहिए। ओके, अब देखिए, कारी was like a baby. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. Okay, कारी एक बच्चे के समान था। उसे अच्छा बनाने के लिए प्रशिक्षण देना आवश्यक था। जब वह शरारत करता, यदि उसे नहीं डांटते तो वह पहले से भी ज़्यादा उपद्रव करने के लिए प्रेरित हो जाता था। ओके, अब देखिए, फॉर इंस्टेंस वन डे somebody gave him some bananas to eat. Very soon he developed a great love for ripe bananas. We used to keep large plates of fruit on table near a window in the dining room. One day all the bananas on that table disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruits in the house. A few days later the fruits disappeared again. This time the blame was put on me and I knew I had not done it. It made me very angry with my parents and the servants, for I was sure they had taken all the fruits. The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed and in Kari's pavilion. This surprised me very much, for I had never seen fruit there, and as you know, he had always lived on twigs. ओके, यानी उदाहरण के लिए एक दिन किसी ने उसे खाने के लिए केले दिए। ओके, यानी कारी को खाने के लिए पके केले दिए। जल्दी ही पके हुए केलों के प्रति उसका प्रेम विकसित हो जाता था। यानी पके हुए केलों को खाना उसे बहुत पसंद था। हम भोजन कक्ष में खिड़की के पास एक मेज़ पर फलों की बड़ी प्लेट रखा करते थे। एक दिन उस मेज़ के सारे केले गायब हो गए। मेरे परिवार ने घर के नौकरों पर सारे फल खाने का आरोप लगा दिया। कुछ दिनों पश्चात फल दोबारा गायब हो गए। इस बार इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया और मैं जानता था कि यह मैंने नहीं किया था। इससे मैं मेरे परिवार वालों और नौकरों पर गुस्सा हो गया, क्योंकि मुझे पता था फल उन्होंने ही लिए थे। ओके, अगली बार जब फल गायब हुए तो मैंने एक केले को कारी के पखवाड़े में पूरी तरह कुचले हुए पाया। मुझे इस पर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने वहाँ कभी फल नहीं देखे थे। ओके, कभी भी फल नहीं देखे थे। और जैसा कि आप जानते हैं, कारी हमेशा टहनियाँ ही खाया करता था। ओके, नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission, a long black thing, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. I was very much frightened because I had never seen snakes
eat bananas, and I thought it must be a terrible snake that would sneak in the take fruit. I crept out the room and with great fear in my heart ran out the house, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruit and kill all of us. ओके अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि लिसन टू मी केयरफुली स्टूडेंट्स। ओके देखिए अगले दिन यानी नेक्स्ट डे जब हमने देखा कि सब लोग भोजन कक्ष में डाइनिंग रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, भोजन कक्ष में बैठे हुए हैं और यह विचार कर रहे थे कि क्या मुझे अपने माता पिता की अनुमति के बिना कुछ फल ले लेने चाहिए। तभी एक लंबी काली चीज़ बहुत ज़्यादा सांप जैसी अचानक खिड़की से अंदर आई, ओके, और सारे केले लेकर गायब हो गई। ठीक है, मैं बहुत घबराया हुआ था क्योंकि मैंने कभी सांपों को केले खाते नहीं देखा था। मैंने सोचा कि यह कोई भयानक सांप था जो चोरी छिपे अंदर आकर फल ले जाता है। मैं रेंगते हुए कमरे से बाहर आ गया और अपने हृदय में अत्यधिक भय लिए घर से बाहर यह महसूस करते हुए भाग लिया कि सांप फिर घर वापस आएगा, सारे फल खा जाएगा और हम सबको मार देगा। ओके, यानी वो ऐसे डरने लगा। एज आई वेंट आउट आई सॉ कारीज बैक disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. I ran after him into the pavilion and I found him there eating bananas. I stood still in astonishment. The bananas were lying strewn all around him. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. That instant the trunk looked like a black snake. Okay, black snake, and I realized that Kari was the thief. I went to him, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was Kari and not I that had eaten all the fruits these many weeks, है ना। Then I scolded him, for elephants understand word as well as children. Okay, and I said to him, next time I see you stealing fruit, you will be whipped. He knew that we were all angry with him, even the servants. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room, and from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. Okay, and as I went okay students, as I went out I saw Kari's bag disappearing in the direction of the pavilion. Okay, जैसे ही मैं बाहर आ गया मैंने देखा कि कारी की पीठ को पखवाड़े की दिशा में तरफ गायब होते देखा। मैंने इतना डरा हुआ था कि मुझे स्वयं को प्रसन्न करने के लिए उसके साथ की ज़रूरत थी। ठीक है, यानी मैं कारी के साथ ही खुश था। मैं उसके पीछे पखवाड़े में भागा और मैंने उसे वहाँ केले खाते हुए देखा। मैं अचंभित खड़ा रहा। उसके चारों तरफ केले तिनकों की भांति बिखरे पड़े थे। उसने अपनी सूंड फैलाकर एक केले तक पहुँचाई जहाँ वह दूर था, जहाँ वह खड़ा था। उस पर सूंड एक काले सांप की तरह लग रही थी। कैसे लग रही थी उसकी सूंड? जो है एक काले सांप की तरह, उसकी सूंड एक काले सांप की तरह लग रही थी और मैंने जान लिया कि कारी ही चोर था। मैं उसके माता पिता के साथ गया, कान खींचकर उसे बाहर लाया। ठीक है,
उसे कान खींच कर बाहर लाया और मैंने देखा कि प्रसन्नतापूर्वक वह अपने माता पिता को दिखाया, पेरेंट्स को दिखाया कि वह कारी था। हाँ, यानी he stretched out his trunk and reached for around him. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. That instant the trunk looked like a black snake. Okay, यानी उसकी जो सूंड थी वो एक काले सांप की तरह लग रही थी। ठीक है, उसने अपनी सूंड फैलाकर एक केले तक पहुंचाई जो बहुत से वहाँ से दूर खड़ा हुआ था। उस पल सूंड एक काले सांप की तरह लग रही थी और मैंने जान लिया कि वह कारी ही था जो कि चोरी से केले ले रहा था। मैं उसके पास गया और उसका कान खींचकर उसे बाहर लाया और प्रसन्नतापूर्वक मैं उसके पास गया और उसको अपने माता पिता को दिखाने के लिए ले आया कि देखो ये क्या कर रहा है। मैं नहीं, जो कई हफ्तों से सारे फल खा रहा था, यही है जो कई हफ्तों से फल खा रहा था। फिर मैंने उसे डांटा क्योंकि हाथी बच्चों की तरह शब्दों यानी डांट को समझते हैं, और मैंने उससे कहा कि अगली बार यदि तुम्हें फल चुराते हुए देखता हूँ तो तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे, कोड़े लगाए जाएंगे। ओके, वह अच्छी तरह जानता था कि हम सभी उस पर गुस्सा थे, यहाँ तक कि नौकर भी। उनके स्वाभिमान को इतनी ठेस पहुंची थी कि उन्होंने भी कभी कोई चीज़ भोजन कक्ष से नहीं चुराई थी। फिर तब से जब कोई उसे खाने के लिए फल देता तो वह हमेशा हल्के से चिंघाड़ता जैसे कि वह उसका धन्यवाद कर रहा हो। ओके, एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन wrong, but if you punish him without